Okay. Hi, hello everyone. Hope my screen is visible, right? Yes, sir. Okay, good. Yes, Thank sir. you. Thank you. So, just to revise, we started with the data analytics process. So, process include data understanding, data formatting. In the data formatting, we have a we understand why the particular column exists. Then we do a formatting related to table as well. As in, we everything has to be in the table. एंड उसका इम्पोर्टेंस हमने कल वी लुकअप और एक्स लुकअप और एच लुकअप में फॉर्मूला जब हम यूज करते उस टाइम हमने देखा था राइट so it is in the step 2. In the step 3 we have quick insights. In the quick insights we use conditional formatting, so based on the specific condition such as top 10 percentage, right? Bottom 10, above average, below average, or greater than certain value, less than certain value, or equal to, not equal to. Based on all the logical conditions or mathematical operations, we used to either filter or sort, right? ये सब कुछ हमने conditional formatting में देखा था. Hope I'm audible. Okay. Okay, I can see most of you joining from the class. Can anyone quickly confirm ऑफलाइन में जो है उन्होंने ज्वाइन किया है? ओके. या गुड. Good Swapnil, thank you for the confirmation. Hope everybody is in the room and joined the class, right? We can start now. Hope. ओके. ऑफलाइन का जो भी अटेंडेंस है आप लिख के ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए एज यूजुअल हाउ वी डू इट. ऑनलाइन आई विल टेक द अटेंडेंस. ओके, नॉट एन इशू. Clear everyone, should we start? Is it? Hope all are set. Hmm? Uh, okay, good. ठीक है. जो ऑफलाइन ज्वाइन हुए हैं, कैन यू गाइस क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक? कोई भी एक, एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड कंफर्म आप लोग ज्वाइन हुए हैं. Yes, sir. ओके, गुड. थैंक यू. थैंक यू. चलो, बाकी लोग आप म्यूट कर सकते हो इफ देयर इज अ इको एंड होप ऑल इज सेट. ओके, चलो. सो नाउ नेक्स्ट, डेटा फॉर्मेटिंग के बाद फोर्थ स्टेप जो हमने कल देखा विच वाज रिलेटेड टू कंसोलिडेशन, राइट? सो I explained you regarding consolidation, where it is required, why it is required, and then we understood the scenarios, right? Different scenarios. उस केस में जहाँ पे हमें कॉपी करना है, डेटा कंबाइन करना है, उस केस में we can use something called lookup functions. Sorry, lookup functions. So what lookup functions? There are three types of lookup functions: VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, right? So based on these lookup functions, we can use appropriate lookup functions and copy the data from different sheet और different files. मतलब multiple files से भी हम data copy कर सकते हैं और multiple sheet, right? उससे भी हम data copy कर सकते हैं. So this is what we covered yesterday, and then we in detail we understood what is VLOOKUP और VLOOKUP related सारे 3-4 cases जो होते हैं with the different variations. Then HLOOKUP आपको एक example करके दिखाया था, and then I asked you to do the homework related to HLOOKUP, right? Then we went on to XLOOKUP, where we initially identified what is the problem, मतलब why XLOOKUP was created, like XLOOKUP क्यों बनाया गया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया. The limitation was I cannot I cannot copy the data which is on the left side of the common value. मतलब कॉमन वैल्यू के जो लेफ्ट साइड में है और कॉमन वैल्यू के जो पीछे कॉलम्स है उसे मैं
कॉपी नहीं कर सकता बाय यूजिंग VLOOKUP एंड HLOOKUP, राइट? सो दिस वाज द मेन लिमिटेशन, और उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए वी यूज्ड XLOOKUP, राइट? वेयर XLOOKUP बहुत सिंपल था, जहाँ पे सिर्फ हमें दो कॉलम सिलेक्ट करने थे। एक कॉलम जिसमें लुकअप वैल्यू अवेलेबल है, और दूसरा कॉलम जहाँ से मुझे डेटा चाहिए, राइट? नो नीड टू बिल्ड एनी रिलेशन, एनी नंबर, एनी इंडेक्स, ये कुछ देने की जरूरत नहीं थी, राइट? एंड with that we understood how we can implement XLOOKUP, not only the k not only the limitation part, but regular VLOOKUP भी हमने XLOOKUP यूज करके परफॉर्म किया था, and HLOOKUP also performed using XLOOKUP, right? Then I asked you to do the homework. So homework consists of the table, entire table में एक में employee ID common था, and then I asked you to copy all the data from the same sheet, from the different sheet. Hope यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है क्या? Within the entire 3-4 days which we spent on learning different topics. Uh, so hope everybody has understood. Quickly you can confirm with the thumbs up that you are confident. आप thumbs up emoji भेज सकते हो, so that you are confident and you understood everything, right? Okay, good. Okay, okay. Thank you. So good then. So we are good to move to the next point. So our next step. So in the process, the fifth step is data summarization. Okay. So what do we mean by data summarization? और ये क्या चीज है और क्यों सीखना पड़ता है? Let's understand that, and then we can start. Okay. So come to the point. Hope my screen is visible. आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है समथिंग रिलेटेड विद द एजेंट, अकाउंट टाइप और कुछ डेटा है. Okay, so this is one of the data set which we have to use for our further discussion. Just to give you the background, मतलब इसका background और context set करना है तो can we, this is a data from a bank, एक बैंक के जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं और डे टू डे एक्टिविटी, उससे रिलेटेड ये डेटा है. एंड दिस इज फ्रॉम अगेन यूएस, मतलब यूएस में जो बैंक है उसका डेटा यहाँ पे दिया गया है आपको. ओके, सो दिस इज अ बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है इस डेटा का. सो लेट्स डू द ऑब्वियस थिंग. एज अ डेटा एनालिस्ट आपका काम क्या रहेगा? टू क्रिएट इनसाइट्स, राइट? टू जनरेट इनसाइट्स एंड प्रोवाइड सुटेबल एक्शन to grow the business. Oh, right? So these two are the main thing which you need to do, and ये achieve करने के लिए और ये accomplish करने के लिए we follow the step called data understanding. So let's do the data understanding then. So agent, something with the agent, maybe जैसे हमें कॉल वगैरह आता है, राइट? क्रेडिट कार्ड चाहिए, लोन और कुछ इंक्वायरी रिलेटेड. सो कैन वी से दैट इज द एजेंट. सो आप नीचे नाम भी देख सकते हो, राइट? अशोक कुमार, प्रवीण, अभिषेक, राइट? So I guess that is the data agent. Then account type, okay, IRA, CD, checking, saving. ओके, समथिंग सेविंग दिख रहा है, मतलब ये कुछ अकाउंट टाइप के बारे में होगा. जैसे इंडिया में सेविंग्स अकाउंट रहता है, करंट अकाउंट रहता है, राइट? एनपीएस रहता है, पेंशन अकाउंट. और कुछ अकाउंट टाइप पता है कि आपको इंडिया में जो होते हैं? एनीवन? ओके, सो दिस इज अकाउंट टाइप. द नेक्स्ट, ओपन बाय, किसने ओपन किया है और कैसे? मोड ऑफ ओपन, टेलर मतलब टेलीफोन, बाय यूजिंग अ फोन किसी ने कॉल किया एंड देन दे सेड इट इज इंटरेस्टेड, तो ऐसे बाय यूजिंग अ टेलीफोन दे हैव ओपन्ड. देन न्यू अकाउंट, मतलब डायरेक्टली वॉक इन, बैंक में आ गए हैं, एज इन द पर्सन हैज वॉक्ड इनटू अ बैंक एंड उन्होंने ये अकाउंट ओपन किया है. सो इन दिस केस चेकिंग नाम का कुछ अकाउंट है, वो यहाँ पे ओपन किया है. कौन से ब्रांच पे ओपन किया है? सेंट्रल, सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट साइड, जैसे इंडिया में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, राइट? समथिंग रिलेटेड टू दैट. कस्टमर,
तो कस्टमर एग्जिस्टिंग है या न्यू कस्टमर, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब सपोज मैं अभी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, सपोज XYZ बैंक का, HDFC का, एंड नाउ आई वांट टू ओपन द सेविंग्स बैंक अकाउंट, राइट? ऐसे ही रहता है ना, रैंडमली आप किसी भी बैंक में जाके ओपन नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आपने उस बैंक का इधर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, राइट? क्रेडिट कार्ड है तो आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, नहीं तो सेविंग्स अकाउंट है तो फिर आप NPS मतलब जो पेंशन रिलेटेड होता है वो ओपन करने का ट्राई करते हो, नहीं तो लोन अकाउंट ओपन करते हो एग्जिस्टिंग, राइट? सो इफ यू आर अ यूजर और आप एक ब्रांच और एक बैंक के कस्टमर है और दूसरा सर्विस अवेल कर रहे हो, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है, राइट? देन ऑब्वियसली दिस इज अ मंथ, दिस इज एग्जैक्ट डेट ऑन विच इट इज ओपन्ड एंड दिस इज अ अमाउंट, मतलब उनके बैंक अकाउंट में, पर्टिकुलर XYZ कस्टमर के बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है अभी करंटली, सो दैट डिटेल इज अवेलेबल हियर. Clear? So is data understanding clear to everyone? Quickly confirm. Okay, good. Right. So next step क्या रहता है? Next step is data formatting, right? We have a next step called data formatting. So quickly, can you guys confirm what is the data type for agent? Hmm? What is the data type? Chat में type कर Text. सकते हो. Okay, Text text है सर. absolutely. So how I can format? Select the entire column, right click, format cells दिख रहा है क्या यहाँ पे? Click on this, then go to text, press OK. Okay. What about account type? Text. Okay. Yes, Nice, text. Pranit. Good. So let me do that as well. और यहाँ पे आपको वो इश्यू समझ में आ गया. देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे मैन्युअली सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऐसे सिलेक्ट होता है, राइट? लाइक दिस. राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, देन गो टू टेक्स्ट अगेन. नेक्स्ट, तो इसीलिए मुझे शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, राइट? फॉर्मेट सेल्स, टेक्स्ट, ओके. So similarly, branch and existing customer, so down and format cells, okay, text. And if you think November abhi we have extracted only the month, so I can create it as a date as well as a month. So I will keep it as a month for now. Oh sorry, I will keep it as a text for now. इसका भी आपको बाद में रीजन पता चलेगा, okay? Text. But this one is I can create it as a date. So right click, format cells, and जनरल भी कर सकता हूँ मैं, एज इन आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो ये ऐसे फॉर्मेट, एज इन कस्टम फॉर्मेट, नहीं तो इनबिल्ट फॉर्मेट जो है डेट, वो भी आप यूज कर सकते हो लाइक दिस, ओके? और दिस वन ये चाहिए तो ऐसे यू कैन क्रिएट लाइक दिस. एंड दिस इज अमाउंट इज डेफिनेटली इन किसमें होना चाहिए? क्विकली. Currency. Yes, Currency. currency, absolutely currency, right? So dollar, select the symbol dollar, American dollar. Okay, I will select the Australian. ठीक है, right? Clear? हो गया आपका data formatting? Yes? Or something Yes, is sir. missing? हो गया कि कुछ missing है अभी भी? Quickly, क्या missing है? One step is missing still. Hmm? Table कौन create करेगा? Relation between this? Hmm? तो आप क्या करोगे? सिलेक्ट द डेटा, कंप्लीट डेटा सिलेक्ट कीजिए, गो टू इंसर्ट एंड टेबल, राइट? ये हमें इंसर्ट करना है यहाँ से, ओके? मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ये देखिए टेबल डिजाइन यहाँ पे आ रहा है.
So you don't have to do it, but ideally you should do the design. Clear? हो गया, सबको समझ में आया? So this is a data understanding part. Okay, good. तो आगे के जो स्टेप्स है, इनसाइट्स, क्विक इनसाइट जो निकालना है आपको, वो आप ड्रॉ कर सकते हो. वेस्टर्न में कितने लोग हैं, सेंट्रल में, ऑल दोज थिंग्स. यहाँ पे कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डेटा इज गिवन, सो डेटा कंसोलिडेशन वी कैन स्किप. ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ अप टू नाउ जितना हमने अभी तक सीखा है वो आपने किया है. स्टिल मुझे एक डाउट है इसमें. इसका मतलब क्या है? आपने डेटा अंडरस्टैंडिंग किया, राइट? इसका मतलब क्या है चेकिंग? इसका मतलब क्या है सीडी? यस, ए IRA करके है कुछ. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? IRA मतलब सर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट. ओके, आप किसी बैंक में काम करते हो और यू हैव एनी बैकग्राउंड? नो सर, मतलब सब गूगल पे चेक किया था अंडरस्टैंडिंग करने के ओके, टाइम पे. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन नोज व्हाट इज दैट मीन? डेटा अंडरस्टैंड करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉलम में क्या है देखना है. उस कॉलम में क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, राइट? इन दिस केस एब्सोल्युटली आई फॉरगॉट द नेम. हु वाज इट? ओके, अभी जिन्होंने बात किया, एब्सोल्युटली राइट. पहले तो आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो. ओके, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. गूगल कीजिए प्रत्येक टर्म, हर एक टर्म क्या है. ओके, और गूगल क्या है, गूगल करना और सर्च करना इट्स सो ओल्ड फैशन ना. अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, आपको कुछ सर्च करना है तो एनीवन नोज? चैट जीपीटी. चैट जीपीटी, एब्सोल्युटली. तो गूगल करना इज टू ओल्ड फैशन. तो अभी ट्रेंडिंग में क्या है, चैट जीपीटी यूज करना. किसी को पता है क्या कैसे यूज करते हैं चैट जीपीटी? और एनीवन नोज? किसी ने यूज किया है पहले? यस सर. ओके, गुड. व्हाट किया अबाउट सर. अदर्स? गुड, गुड. साक्षी, प्रीति. ओके, स्वप्निल. Okay, I see you already know, but still we will cover. पहले तो जो आप गूगल करते थे वो सब कुछ चैट जीपीटी पे कर सकते हो. ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक. और चैट जीपीटी आपको क्या करता है, कस्टमाइज सॉल्यूशन देता है. मतलब गूगल आप करोगे तो आपको 8-10 लिंक आएंगे, उस लिंक के ऊपर जाके आपको रीड पढ़ना पड़ेगा, राइट? इससे अच्छा कस्टमाइज सॉल्यूशन एज इन जो आपको चाहिए वो रेडीमेड बना के देगा, विच इज अ चैट जीपीटी, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ, आपने सुना होगा एक एआई मॉडल है, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल वगैरह उसको बोलते हैं. तो इसके यूज करने का एक टेक्निक है. दिस इज लाइक यूर असिस्टेंट, आपका जो पर्सनल असिस्टेंट रहता है, एज इन आप काम बोलो वो करके देगा, राइट? ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ, आपने आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको बोला कि मुझे कौन सा मूवी चल रहा है ये बताओ, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बुक माई शो ऐप डाउनलोड करो और उस पर पढ़ो. गूगल ऐसा ही बोलता है ना, ये 10 लिंक है, इस पे जाओ और पढ़ो खुद क्या उसका मीनिंग है. बट पर्सनल असिस्टेंट क्या करेगा, आपको एग्जैक्टली बोलेगा कौन सा मूवी शुरू है, पुष्पा 2, राइट? पुष्पा 2 है, मोना, वट एवर इज रनिंग नाउ, ही विल डायरेक्टली गिव यू प्रिसाइज आंसर. तो आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए, इंस्टेड ऑफ यू गोइंग एवरीवेयर एंड सर्चिंग. मतलब आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और खुद पढ़ रहे हो, इससे अच्छा उस वेबसाइट पे जो आपको चाहिए वो आपको एक्सट्रैक्ट करके चैट जीपीटी बताएगा. सो हाउ डू यू यूज? डायरेक्टली गूगल इट, चैट जीपीटी, राइट? Sorry, I am using some different chat GPT. चैट जीपीटी ऐसे आप गूगल कर सकते हो, not this chat GPT but this one. ओके, डायरेक्टली आप यहाँ पे ओपन एआई के वेबसाइट पे, ओपन एआई नाम की जो कंपनी है उन्होंने ये चैट जीपीटी बनाया है, राइट? सो यहाँ पे क्लिक ट्राई चैट जीपीटी. होप माय स्क्रीन इज विजिबल. सो यस सर. गुड. तो लॉगिन कीजिए एज जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे वगैरह लॉगिन करते हो,
Similarly, just a second, let me Actually, sir, no need to log in. It मुझे directly will show open. बट यहाँ पे पूछ रहा है. आई एम Okay. नॉट श्योर व्हाई. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी pause the recording, नहीं तो ये सबको दिख. Okay. So once you click on the Google, this is how you can access. जैसे आप गूगल करते थे सेम स्क्रीन यहाँ पे है, राइट? बट ये देखिए, इमेज क्रिएट कर सकते हो, समराइज, कोड, मेक अ प्लान. कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो उसका प्लान बना के देगा. इमेज को एनालाइज करना है तो वो करके देगा. ऐसे बहुत सारे टास्क ये करता है. ओके. सो बट प्रॉब्लम इसका क्या है कि दिस इज अ ओपन एंडेड. इसको एज अ पर्सनल असिस्टेंट इट कैरीज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब जिन्होंने ये बनाया बहुत इंटरनेट के जो पूरा नॉलेज है इसके ऊपर ये बनाया है. तो ये क्या करता है, समटाइम कंफ्यूज हो जाता है. मतलब सपोज मैंने पूछा, एज इन चैट जीपीटी को पूछा, व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट ऑन होम लोन. ऐसे कुछ मैंने पूछा, राइट? बट प्रॉब्लम क्या होता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट के मल्टीपल मीनिंग है. एक हो सकता है बैंक का इंटरेस्ट, बैंक में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है. नहीं तो मैं आपको इन जनरल पूछता हूँ, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, राइट? तो ये कौन सा इंटरेस्ट के बारे में बात हो रहा है, कैसे पता चलेगा? जब आप ह्यूमन है, एज इन वन टू वन जब हम लोग बात करते हैं तो वी नो कि प्रीवियसली he was introducing himself, so must be the interest is related to that person. मतलब ये आदमी इंट्रोड्यूस कर रहा था तो जो इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में है. तो ये हमें एज अ ह्यूमन बीइंग पता चलता है. बट एज अ मशीन, एज अ एआई मॉडल, इसे पता नहीं चलता. तो इसीलिए जनरली वी नीड टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट. ओके. और ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट. इस यहाँ पे जो लिखेंगे इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं. सो आई नीड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? आई एम आई एम डूइंग डेटा एनालिसिस. किस पे? ऑन यूएस बैंकिंग डेटा सेट, राइट? ये हो गया कॉन्टेक्स्ट सेटिंग. फिर आपको आउटपुट क्या चाहिए इससे? तो यू कैन सजेस्ट, पहले तो इसको एक पर्सोना भी देना होता है. मतलब आप इसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए, I want you to be data analyst. हो गया, डेटा एनालिस्ट बनो. फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एनालिसिस ऑन बैंकिंग डेटा सेट. अभी आपको क्या चाहिए फिर? आउटपुट बोलिए आप, राइट? आउटपुट, आई वांट यू टू एक्सप्लेन द यूएस बैंकिंग टर्म्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. राइट? मतलब इंडियन बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट, इंडियन बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट पे मुझे तुम एक्सप्लेन करो कि क्या है वो, राइट? ये हमने उसे बताया. तो क्या टर्म्स है? द टर्म्स आर, इनपुट दे दीजिए. मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना होगा, आपको डिफाइन करना होगा उसका पर्सोना, एज इन क्या आपको एक्सपेक्टेड है. सो दैट उससे जो भी हम टर्म्स पूछेंगे, इंटरेस्ट वगैरह पूछा तो अभी वो बैंकिंग के हिसाब से ही पूछे बोलेगा, राइट? तो आप बोलो कि आई वॉन्ट यू टू बी दिस एंड मैं ये कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे इंफॉर्मेशन दो. चलो, तो अभी आपको क्या क्या जानना था? व्हाट इज अकाउंट टाइप, राइट? चेकिंग, सीडी, और क्या क्या था? आईआरए. लिखिए डायरेक्टली, आईआरए, सीडी, चेकिंग, राइट? सेविंग. और क्या था? और क्या क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? यहाँ पे कुछ काउंटी है, काउंटी लिखिए, कॉमा काउंटी. और क्या क्या समझ नहीं आ रहा है? ओके, दिस इज इट, फुल स्टॉप, इंटर. देखिए, एज अ दिस बोलेगा. आईआरए मतलब इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट. ओके. और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में द क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और एनपीएस, राइट? इसका मतलब ये है. सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन इंडिया एफडी. जैसे इंडिया में एफडी होता है वहां पे सीडी होता है, राइट?
चेकिंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इक्विवेलेंट टू करंट अकाउंट, राइट, लाइक दिस. सेविंग्स अकाउंट, this is directly matches India's saving account, right, directly. County, county refers to administration equivalent to district. जैसे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे वहां पे काउंटी है. ओके, सो लाइक दिस आपको पूरा डेटा समझ में आता है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड द डेटा. क्लियर? पहले ये जानने के लिए यू नीड टू हैव अ एसएमई. कंपनी में पहले रोल होता था सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट करके, उसे सब पता चलता था, मतलब जो डेटा है उसके बारे में एक डोमेन. एज इन फाइनेंस और यूएस हेल्थ केयर में काम कर रहा है तो यूएस हेल्थ केयर का एक प्रोफेशनल आदमी वहां पे बैठा रहता था, उसका काम यही था कि वो एक्सप्लेन करना सबको, उन्हें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं, राइट. बट आज के जमाने में वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि we already have the tools like ChatGPT, right, which can give us a exact information. Clear? Not only this, आपको कुछ कोडिंग करना है, कुछ इनसाइट्स निकालना है तो आप वो भी कर सकते हो. ये सैंपल डेटा 10 रोज कॉपी करके आप बोल सकते हो, I want you to be a data analyst, I will share you the data, give me some important insights जनरेट करके देगा आपको. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो डेटा है 800 लाइन आइटम्स, इतना डेटा आप पास नहीं कर सकते. इट इज नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड दैट मच, बट 10-20 रिकॉर्ड आप पूरा पास कर सकते. क्लियर? आपको ये समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. यहाँ पे लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, कैन यू एक्सप्लेन इन मराठी. ओके, तो ये मराठी में एक्सप्लेन करेगा पूरा, राइट. सो वट एवर इट इज लाइक दिस, आप कोई भी लैंग्वेज में आपको पूरा समझ में आएगा. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि हो क्या रहा है. सो डेटा अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉलम जानो, कॉलम का डेटा टाइप चेक करो, राइट. सो यू नीड टू बी वेरी थरो विथ इट. क्लियर? सबको समझ में आया कैसे यूज करना है? हाउ डू यू यूज Yes, चैट sir. जीपीटी टू Yes, डेटा sir. अंडरस्टैंडिंग? ओके, आपको समझ नहीं आ रहा तो डेटा फॉर्मेटिंग के बारे में भी पूछ सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना. सब चैट जीपीटी को पूछेंगे तो वन डे चैट जीपीटी विल टेक योर जॉब, राइट. ओके, गुड. सो लेट्स क्लोज दिस एंड कम बैक टू द टॉपिक. समझ में आया सबको हाउ यू कैन डू? गुड. सो नेक्स्ट स्टेप नाउ, एज अ ब्रांच मैनेजर, ये एज अ ब्रांच मैनेजर मुझे फाइंड आउट करना है कि फॉर एग्जाम्पल अभिषेक कुमार का ऐसे कितने सेविंग्स अकाउंट अभिषेक कुमार ने ओपन किए हैं. यस, कैन यू गाइज टेल मी कैसे फाइंड आउट करना है ये? आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी अकाउंट्स अभिषेक कुमार हैज ओपन्ड. अभिषेक कुमार के ऐसे कितने कस्टमर है और उन्होंने ऐसे कितने अकाउंट फिल्टर ओपन लगा किया के है. करेंगे या फिर प्योर. ओके, फिल्टर नहीं तो पिवट. पिवट पे आएंगे, बट फिल्टर इज अ गुड ऑप्शन. उसके बाद आई वांट टू फाइंड आउट अभिषेक कुमार के ऐसे कितने सेविंग्स अकाउंट जिन्होंने कितने भी ओपन किए, उन सारे सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, राइट. अमाउंट, हाउ मच अमाउंट इज देयर, एंड उसका परसेंटेज विथ ओवरऑल बिजनेस. मेरा ओवरऑल बिजनेस कुछ सपोज 10 लाख का रहेगा, राइट. उसमें से अभिषेक कुमार का सेविंग्स अकाउंट का परसेंटेज ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है. हाउ विल यू डू इट? यस, एनीवन नोज? और अभिषेक कुमार सेविंग्स अकाउंट परसेंटेज ऑफ शेयर, और उसमें भी सिर्फ न्यू कस्टमर, मतलब ऐसे कितने कस्टमर है जो न्यू है, सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है और उनका सेल्स पर्सन अभिषेक कुमार था, उनके अकाउंट में कितना पैसा है, उस सब का परसेंटेज चाहिए ऑफ द टोटल. सो
होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ। हम अभी तक जो क्विक इंसाइट निकाल रहे थे उसमें क्या हो रहा था, सिंपली हम फिल्टर लगाते थे, कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आई कैन इजीली फाइंड द इंसाइट्स। बट नाउ द टाइम आई नीड टू डिग डीपर, मतलब और थोड़े डिटेल में जाके मुझे एक्सप्लेन करना है और डिटेल में जाके फाइंड आउट करना है हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाट, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेल्स पर्सन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कौन से कस्टमर टाइप इंपॉर्टेंट है, न्यू है कि एग्जिस्टिंग है, राइट। वॉक इन कैसे आ रहे हैं, टेलीफोन से आ रहे हैं कि डायरेक्टली अकाउंट में आके पैसा ओपन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन है, कौन से ब्रांच से आ रहे हैं, राइट, कौन से डिवीजन से आ रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल मुझे फाइंड आउट करना है, वो भी विथ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। देन आई नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड पिवट। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड पिवट टेबल, एक ऑप्शन है पिवट टेबल करके, ये ऑप्शन हमें इनेबल करता है, वी कैन गो द डीपर टू अंडरस्टैंड इन द डीपर लेवल। मैन्युअली कैसे करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ फिल्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पे अभिषेक कुमार का, राइट। देन और एक फिल्टर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर सेविंग का, राइट। देन और एक फिल्टर लगाना पड़ेगा इसमें न्यू कस्टमर्स का। ओके, ये सब कुछ लगाने के बाद इसका टोटल लेना पड़ेगा, राइट। टोटल, बाय द वे डायरेक्टली टोटल ऐसे भी निकलता है, देखिए यहाँ पे 94। फिर ये कहीं तो लिख के रखता हूँ समथिंग विद द 94, कैलकुलेटर में ही लिखता हूँ, है ना। 96,000 था ना, समथिंग लाइक 96,000, तो 96,000 लिख के रखो। डिवाइडेड बाय क्या रहता है, टोटल। टोटल कैसे करेंगे, वापस सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा। बाय द वे आई विल यूज शॉर्टकट, डेटा में जाके, ओके ये नहीं होता, टेबल डिजाइन में रहेगा नहीं तो कोई तो, यहाँ पे है, सॉरी। क्लियर फिल्टर आप करो, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करो एंड देन यू विल गेट टोटल। टोटल है 6495175, राइट, 64, so divided by 6495175, कितना परसेंटेज हो गया, 1.74 इंटू 100, ऐसे ही रहता है ना परसेंटेज, 1.74। तो इतना सब कुछ कैलकुलेशन सिंपली एक डेटा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। सो ऐसे मैन्युअली आपको डिटेल्ड करना है तो इट विल टेक सम टाइम, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी यूज अ पिवट टेबल। व्हाट इज दैट, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में जाइए, देन यू कैन सी द ऑप्शन, देखिए दिख रहा है ऑप्शन पिवट टेबल, क्लिक ऑन दिस, देन सिलेक्ट अ टेबल, ये टेबल और रेंज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यू कैन सिलेक्ट दिस। पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हो, और I can select like this, shift control down and this table 4 यहाँ पे आ रहा है, right, like this I can select। और ये नहीं करना है आपको, डायरेक्टली टेबल डिजाइन क्लिक कीजिए, टेबल डिजाइन में जाके भी आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए समराइज विथ पिवट टेबल, राइट, क्लिक, इट विल गिव यू द सेम ऑप्शन। एंड कहाँ पे क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग कर सकते हो, मतलब इसी लोकेशन पे, नहीं तो न्यू शीट पे। आई वुड एडवाइज गो टू न्यू शीट, प्रेस ओके, हो गया। सो दिस इज हाउ यू गेट अ पिवट टेबल। बाय द वे यहाँ पे नया ऑप्शन ओपन हुआ है, देखिए पिवट टेबल डिजाइन एंड एनालिसिस दिख रहा है, क्योंकि ये एक नया फीचर है एक्सेल का, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे। डिजाइन में ऑब्वियसली कलर रिलेटेड है सब कुछ, कलर लेआउट, एंड एनालिसिस में वी हैव मोर ऑप्शंस। ओके ओके, लेट्स फोकस। यहाँ पे आपको दिख रहा है पिवट टेबल फील्ड, फील्ड में दीज आर नथिंग बट अ कॉलम, कॉलम के नाम दिख रहे हैं क्या, एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, ब्रांच, राइट, क्लियर। सो आई विल शो यू, जो हमने अभी कैलकुलेशन किया उसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्विकली, and you will see how simple it is। मुझे क्या चाहिए था, एजेंट, तो I will click and drag agent into a rows, यहाँ पे रोज में मैं एजेंट क्लिक करता हूँ। ओके, देन और क्या चाहिए था मुझे, अकाउंट टाइप,
तो आई विल क्रिएट अकाउंट टाइप इनटू अ कॉलम। ये देखिए ऐसा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या चाहिए था, अमाउंट, राइट। तो अमाउंट मैं वैल्यूज में डाल कर, ये देखिए ऐसे भर जाएगा। ओके, और एक फिल्टर लगाना बाकी था, कस्टमर टाइप। तो आई विल क्लिक ऑन द कस्टमर, ड्रैग इट टू फिल्टर, यहाँ पे आ गया ऊपर फिल्टर। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ न्यू, प्रेस ओके। तो ये पूरा डेटा न्यू के लिए प्रिपेयर हो गया, राइट। और एक बाकी है विच इज परसेंटेज। तो व्हाट आई कैन डू इज क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे क्लिक करो, ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस, गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज, कैलकुलेशन में जाके आप परसेंटेज ऑफ टोटल, प्रेस ओके। सॉरी, कॉलम वाइज हमने किया लगता है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल नहीं ग्रैंड टोटल लेना है आपको, राइट। प्रेस ओके, राइट, समथिंग लाइक दिस। कहाँ पे था, अभिषेक कुमार एंड सेविंग्स, ओके 4.19, आई गेस वी मिस्ड समथिंग। पहले का वैल्यू बराबर था कि एक बार चेक करो, 196 समथिंग। ओके, बाय द वे आपको रिमूव करना है तो यू कैन डायरेक्टली शो वैल्यू एज, यहाँ पे जाके नो कैलकुलेशन, ओके इट इज राइट, एंड डिवाइडेड बाय, ओके वी मिस्ड, हमने सिर्फ 69,000 ऐसा कुछ लिया था ना, तो दिस इज अ टोटल, बाय द वे ग्रैंड टोटल। तो इसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा। आई एम सॉरी, मतलब क्या हुआ था, आई नीड टू चेक, बट दिस इज हाउ यू विल गेट। और इसका आपको परसेंटेज करना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस। आई नो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, राइट। सो ऐसे डिटेल में यू कैन क्विकली फाइंड इट आउट, डायरेक्टली आपको ये परसेंटेज मिलेगा ऐसे, ओके। सो दिस इज हाउ इंटायर कैलकुलेशन, जो हमने मैन्युअली कैलकुलेशंस लगाए, मैन्युअली फिल्टर्स वगैरह लगाए, क्विकली आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा दीजिए, यहाँ पे अभिषेक कुमार, राइट, ऐसे। ओके, ये टोटल के हिसाब से चेंज हो रहा है, सिर्फ अभिषेक कुमार के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई, और आप कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आप अचीव कर सकते हो। ओके, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपने किया सर इधर उधर, नॉट अ इशू, विल डू स्लोली, ओके। तो हम क्या करते हैं, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्वेश्चंस निकाल के रखे, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, एंड देन वी विल लर्न, ओके। तो ऑलरेडी मैंने कई क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको स्लोली स्लोली यू विल बिल्ड द, जो भी हमने अभी किया है 2 मिनट में इधर से उधर ड्रैग, तो आपको समझ में आएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज देयर इन ईच अकाउंट टाइप फॉर ईच पर्सन। मतलब हर एक जो सेल्स पर्सन है उसमें और हर एक अकाउंट टाइप में कितना पैसा है। सो जस्ट टू मेक इट सिंपल, इसमें क्या 3 कंडीशंस है और कौन कौन से कॉलम आपको यूज करने वो लिखिए। एजेंट, एजेंट के बारे में लिखा है, ईच पर्सन इज नथिंग बट एजेंट, मतलब एजेंट के बारे में बात हो रहा है। फिर अकाउंट टाइप के बारे में बात हो रहा है, राइट। एंड फिर आपको चेक क्या करना है, अमाउंट, राइट। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है विथ हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इन 3 के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से एजेंट के कस्टमर रिच है। आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन। तो ये 3 चीज है, मतलब यहाँ पे कुछ अकाउंट, एजेंट के अकाउंट आएंगे, एक कॉलम हो गया, सॉरी रोज में ये हो गया, कॉलम में इफ आई वांट टू इंडिकेट आई कैन टेक अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप में दे सकता हूँ। मतलब ऐसे एजेंट हो गए और यहाँ पे अकाउंट टाइप आएंगे। आपको रिवर्स करना है दोनों, वो भी पॉसिबल है, बट दिस इज हाउ आई कैन डू। देन अमाउंट जो कैलकुलेट करना है, आई कैन मेंशन इट हियर लाइक दिस, ओके।
So these three things I can mention or I can create. So how to do this? Go to the data, ये मेरा original data है, insert pivot table, okay, और table design में जाके summarize the table, press OK, okay, ये filled हो गया. हमें क्या क्या find out करना है? Agent, account type and amount. So select the agent. Sorry, ये नया sheet create हो रहा है, नीचे ये देखिए. एजेंट आपको रो में चाहिए तो आप रो में रखिए, नहीं कॉलम में चाहिए तो आप कॉलम में भी ड्रॉप कर सकते हो. देखिए ये ऐसा दिखेगा. दैट्स इट. ओके, ये क्लियर. देन नेक्स्ट क्या था? अकाउंट टाइप. तो अकाउंट टाइप आप लीजिए रो में, एक कॉलम में एक रो में. आपको ऐसा करना है तो ये यू कैन डू इट लाइक दिस, राइट. देन आपको क्या चाहिए था? हर एक पर्सन, हर एक एजेंट के अकाउंट में कितना पैसा है, मतलब यहाँ पे अमाउंट चाहिए, राइट. तो यहाँ पे अमाउंट आने के लिए यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड वैल्यूज. ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेगा. ओके, सो वैल्यूज में कौन आएगा? अमाउंट. तो क्लिक एंड ड्रॉप. हो गया. तो कैन आई सी हियर क्लियरली हर एक पर्सन के हर एक अकाउंट टाइप में कितना पैसा है, राइट, लाइक दिस. इज दिस क्लियर? नाउ आप इसमें से क्या इंसाइट निकलेगा अभी देखिए. आप CD मतलब जो भी हमारा करंट अकाउंट है, सॉरी FD है, FD में श्वेता हैज कंट्रीब्यूटेड टू 0. मतलब जो पूरा आपका FD का बिजनेस है उसमें श्वेता का कंट्रीब्यूशन 0 है. क्लियरली आपको समझ में आया? क्या ये डेटा देख के समझ में आ सकता था कि आपको ये जो पूरा डेटा है यहाँ पे, ये देख के आपको समझ में आ सकता था क्या कि somebody is there, श्वेता, who is not contributing to the FD business, जो कि आपका FD का बिजनेस है, मतलब FD वगैरह उस पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. और लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन प्रमोद. क्या आपको ये देख के डेटा देख के समझ में आ सकता था कि प्रमोद हैज कंट्रीब्यूटेड द लोवेस्ट अमाउंट टू योर FD? बैंक में जो FD होते हैं उसमें लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन प्रमोद का है. ये विजिबल होता क्या? नहीं. कैन आई से दिस इज अ इनसाइट और वेरी यूजफुल इनसाइट एज अ बिजनेस ओनर और एज अ ब्रांच मैनेजर? कैन आई से दिस इज अ इनसाइट ऑनलाइन? Yes, ओके, sir. आपके मान लीजिए आपकी खुद की एक कंपनी है एंड यू हैव एम्प्लॉयड अराउंड 30-40 पीपल, और उस 40-50 लोगों में आपको समझ में आ रहा है कि these 2-3 people are not contributing to XYZ वर्क. तो आपको पता चलेगा ना, उनसे बात करोगे आप, उसको नहीं चाहिए तो, उनको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? ट्रेनिंग दोगे, राइट. इनसाइट क्या होगा इसमें? इनसाइट विल बी प्रमोद एंड श्वेता आर कंट्रीब्यूटिंग लोवेस्ट फॉर योर FD. FD का जो अमाउंट है और बिजनेस है उसमें श्वेता और प्रमोद का, प्रमोद का कंट्रीब्यूशन इज लोवेस्ट. ये हो गया इनसाइट. एक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द एक्शन? एक्शन क्या होगा आपको पता है? Provide them training. यस. और शुड वी फायर देम? ऐसे होता है ना, कंपनी में काम नहीं किया तो क्या होता है? Yes, sir. Okay, so you should suggest we can provide them a training. क्योंकि उन्हें नहीं आ रहा है तो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, राइट. सो ये क्या हो गया? एक्शन. क्लियर एवरीवन? क्या इंसाइट और क्या एक्शन है? और क्या इंसाइट्स निकाल सकते हो आप? देखिए और क्या है. हाँ, सेम विद द IRA के बिजनेस में कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? ओके, ओ हियर आल्सो 2 people सेम, प्रमोद एंड श्वेता. See, these 2 people are not contributing to for CD, not contributing to IRA. फिर चेकिंग और सेविंग में इनका उसमें भी शेयर सबसे कम ही लग रहा है, राइट. हाँ, यस. See, these 2 guys are not contributing, as in they are the lowest contributor to your business. Okay. और
आपको IRA के केस में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इज दिस पर्सन आई गेस. हाँ, अशोक कुमार इज कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट टू योर बिजनेस. ओके, टोटल बिजनेस में देखिए, मतलब हाँ ये अमाउंट हमने चेक किया था, होप हाँ अभी आया 64, 95, 175. इसमें से हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है? हु इज द सेल्स पर्सन हु इज कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट? 10, 11, 19. Oh, अशोक कुमार इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन ओवरऑल बिजनेस. मतलब आपके बिजनेस में अशोक कुमार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. मान लीजिए कल अशोक कुमार ने छोड़ दिया तो, इफ अशोक कुमार लेफ्ट द कंपनी, क्या होगा? रिस्क बहुत है ना, तो यू शुड हाईलाइट द रिस्क. अशोक कुमार इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस. ये ऐसे ही हाईलाइट करोगे ना? यस, नो? Yes, sir. ओके, गुड. आई वांट आंसर्स फ्रॉम अदर्स एज वेल. आपको थम्स अप देना है तो यू कैन शो इट. बाय द वे, एक इशू में जो फेस कर रहा हूँ यहाँ पे, नंबर्स बहुत बड़े हैं और मैं एग्जैक्टली देख नहीं पा रहा हूँ. सेम केस विल हैपन विथ यू, मतलब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. तो इसीलिए इंडस्ट्री में नंबर्स जनरली कोई नहीं देखता. जनरली परसेंटेज को प्रेफर किया जाता है. ओके, परसेंटेज. इससे क्या होता है कि झट से पता चलता है कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है. मैं ऐसा बोलूंगा, अशोक कुमार इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज 19 लाख डॉलर का बिजनेस कर रहा है. 19 लाख डॉलर किसके रेफरेंस में, क्या है? मान लीजिए मेरा बिजनेस है 1000 करोड़ का, उसमें से 19 लाख सिर्फ वो लेके आ रहा है, तो कैसे इंपॉर्टेंट हुआ? ये कुछ समझ नहीं आता. तो इसलिए जनरली पीपल अवॉइड गिविंग एग्जैक्ट नंबर्स, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स थोड़ा अवॉइड करते हैं लोग, सो दैट उसका तो पिक्चर क्लियरली नहीं पता चलता. तो व्हाट पीपल और व्हाट इंडस्ट्री में फॉलो होता है, परसेंटेज. सो यू शुड कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू अ परसेंटेज. सो लेट्स डू दैट. कैसे करते हैं? क्लिक, कहीं पे भी क्लिक कीजिए, प्योर टेबल एनालाइज. बाय द वे, ये देखिए जो आपको यहाँ पे फील्ड आया था, राइट, ये नहीं आ रहा है क्योंकि दिस इज क्लोज्ड हियर. तो आप प्योर टेबल एनालाइज में जाके ये ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा. ये ऑप्शन आप ऑन करोगे तो वो हाइड एंड ओपन हो जाएगा ऐसे. क्लियर? लाइक दिस. बाय द वे, ये इंटरव्यू में पूछा था किसी, मतलब वन ऑफ आवर स्टूडेंट फ्रॉम DA13 बैच, कि ये फील्ड लिस्ट कैसे, क्योंकि वो कुछ करके दिखा रहा था इंटरव्यू में और इंटरव्यूअर ने पूछा ये फील्ड लिस्ट कैसे इनेबल करना है. देन ही गॉट कंफ्यूज्ड, राइट. तो ऐसे छोटी छोटी चीजें रहती है. बाय द वे, इफ यू ऑब्जर्व, टेबल एनालाइज में ये 2-3 चीजें मैं ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ. ये ऐसे कुछ निकालना है आपको, तो ये देखिए ये, ओके, ये ऑन ऑफ भी हो जाते हैं ऐसे. ओके, दिस बटन्स, फील्ड लिस्ट वगैरह, ये फील्ड लिस्ट निकालना है, ऑल दिस थिंग्स. चलो, सो मुझे ये परसेंटेज में दिखाना है, तो क्या करना है? यू नीड टू गो हियर. वैल्यूज को आपको दिखाना है, तो वैल्यूज पे जाइए. यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है उस पे क्लिक कीजिए. देन गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, दिख रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे क्लिक करना है. एंड सम, बाय द वे, एडिशनल फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, बट वी आर इंटरेस्टेड इन टू कैसे इसको नंबर को दिखाना है, राइट. तो आई शुड क्लिक ऑन अ शो वैल्यू एज. तो आई विल क्लिक ऑन शो वैल्यू एज, और यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस बता सकता हूँ. क्या चाहिए था मुझे? परसेंटेज चाहिए था. किसका? टोटल बिजनेस में परसेंटेज चाहिए था, तो ये आएगा ग्रैंड टोटल, राइट. सो आई विल सिलेक्ट दैट एंड प्रेस ओके. Like this I can select, right. So आपको ये ग्रैंड टोटल एज एन ओवरऑल बिजनेस में आएगा ये, इस नंबर के साथ. ओके, सो इफ यू डोंट वांट दिस आई कैन हाइड ऑल्सो, बट अभी समझे कि ऐसे परसेंटेज में आप दिखा सकते हो. हम क्या, कहाँ पे थे? हाँ, अशोक कुमार का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन. सो आउट ऑफ 100%, जो भी आपका 100% का बिजनेस हो रहा है, उसमें से अशोक कुमार का कंट्रीब्यूशन है 29%, राइट. अशोक कुमार इज कंट्रीब्यूटिंग टू
30% ऑफ योर बिजनेस। क्या अभी ये लॉजिकल है, सेंस कर रहा है आपको? अशोक कुमार इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 30% ऑफ योर बिजनेस। मान लीजिए कल अशोक कुमार छोड़ के गया तो आई कैन डायरेक्टली टेक अ लॉस ऑफ 30%, राइट? मतलब ये Yes, sir. he is one of the important person, he is one of the important employee in our organization, right? बाकी लोगों का शेयर देखिए, व्हाट इफ प्रमोद लेफ्ट, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इफ श्वेता, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? व्हाट इफ अरुण, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अबाउट अदर्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट। सो व्हेनेवर दीज गाइज आर ऑन द वे ऑफ लिविंग, तो उनको आपको अच्छा प्रमोशन देना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, राइट? Understood? We need to retain. समझ में आया सबको? हाउ हम कैसे एक छोटे पॉइंट से as in सिर्फ एक पिवट टेबल बनाने से कितने इनसाइट्स हम जनरेट कर रहे हैं। We are understanding how the employees are performing. Okay? फिर एक्शन क्या लेना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, हमें क्या क्या करना चाहिए, हु इज इम्पोर्टेंट, हु इज नॉट इम्पोर्टेंट, कौन से बिजनेस में किसका कंट्रीब्यूशन है, राइट? और ये हमने परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया है। इससे रिलेटेड आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो यू कैन डू इट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो है ये आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। क्लिक, ये देखिए डिजाइन, डिजाइन में आप इससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको आएंगे। यहाँ पे दिख रहा है सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल, तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए ऑफ, ऑफ ऑन फॉर रोज, ऑन रोज, ऑन कॉलम, ऑफ करना है पूरा ऑफ। ये देखिए सिर्फ टोटल इतना मिलेगा। सिर्फ रो के लिए चाहिए, रो के लिए मतलब यहाँ पे सिर्फ दिखेगा। सिर्फ कॉलम के लिए चाहिए, यहाँ पे दिखेगा, राइट? क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। मतलब ऐसे ऑन एंड ऑफ आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर एवरीबडी? अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा समराइजेशन? इसको समराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतने बड़े डेटा में पूरा डेटा विद इन फ्यू क्लिक्स आई कैन क्रिएट सम इनसाइट्स। मतलब पूरा डेटा को कॉम्प्रेस करके 3-4 लाइन में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और वी आर ऑब्जर्विंग इनटू 3-4 लाइन्स द कंप्लीट डेटा। So understood everybody how it is impacting as in pivot table क्यों important है? By the way, this is very important from data analysis standpoint of view. Data analysis जो आप करते हो उसके हिसाब मतलब उसके perspective से ये important है, because most of the times you will be doing this only. Okay, so pivot table, quick insights, pivot table, pivot chart वगैरह आप बहुत use करोगे. Then you can build a POC, proof of concept. Then you will start using some specialized applications, right? Such as Power BI, Python, SQL. Okay, so this is what we discussed, right? Hope you know what is POC and how we are utilizing different technologies. Clear everyone? Understood? So let's start with the second question. Let's observe how we can find out some more insights. So how many account each salesperson has opened? Oh, this is also good. कौन से सेल्स पर्सन ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं? मतलब क्या इसमें क्या क्या रहेगा? एक तो एजेंट आएगा जो अकाउंट ओपन किए हैं, एंड काउंट आएगा, राइट? किसका काउंट? काउंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ओपनिंग जो किया है, मतलब सॉरी अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप, एंड देन उस अकाउंट टाइप का काउंट आएगा कहीं ना कहीं, राइट? ऐसे 3 चीजें हैं। let's build together and then we can start. So click table design, summarize pivot table. Okay, new sheet create करता हूँ मैं. I am here. मुझे क्या चाहिए था? I wanted something called account type. तो account type में drag करता हूँ rows, rows में नहीं चाहिए तो columns. Okay, then I wanted agent. Okay, here. Now और मुझे क्या चाहिए? काउंट चाहिए। किसका? कस्टमर का, किसने कितने अकाउंट ओपन किए, एज इन अशोक कुमार, अभिषेक कुमार के
CD मतलब FD में कितने कस्टमर्स है, इनका काउंट. तो what I can do is I can click customers and drag it into values like this. ओके मतलब पूरे टोटल कितने हैं, 722 अकाउंट्स ओपन हुए हैं मेरे ब्रांच में. उसमें से आप अभिषेक कुमार के FD अकाउंट कितने हैं, 33. चेकिंग मतलब करंट अकाउंट 56. IRA 1. हु वाज इम्पोर्टेंट, हाँ अशोक कुमार इम्पोर्टेंट था ना, इतना इम्पोर्टेंट. एंड ही हैज ओपन्ड 8 IRA अकाउंट लाइक दिस. ये देखिए मैं पूरा बिजनेस एनालाइज कर सकता हूँ, राइट. सो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व्ड प्रीवियसली बिन. तो इफ यू सी ओवरऑल जो भी मेरा बिजनेस है 722, उसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट किसका है, अशोक कुमार का है. देखिए यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कौन है, अभिषेक कुमार, who has opened a maximum account, right. So this is how I can create detailed number of account. और इसी चीज को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो how I can do, go again in the field list में जाइए, काउंट में वैल्यू फील्ड, शो वैल्यू एज मुझे चेक करना है. क्लिक ऑन ग्रैंड टोटल, राइट. ओके 100% जो भी मेरे अकाउंट ओपन है उसमें से देखिए अशोक कुमार इज 28%. उसमें से 28% अकाउंट अशोक कुमार ने खुद ने ओपन किए हैं, मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. प्रवीण कुमार 12% अकाउंट ओपन किया है, राइट. क्लियर. नाउ सपोज आई आस्क्ड यू, सिर्फ जो भी मेरा पूरा बिजनेस है ये एफडी का है, राइट. एफडी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सिर्फ एफडी में, पूरे बिजनेस में नहीं. तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मान लीजिए 29 की जगह मुझे 100 यहाँ पे आना, 100 आ गया, तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई हु इज इंपॉर्टेंट. सो लेट्स डू दैट. तो उसे कैसे करते हैं, सेम जहां पे हमने ग्रैंड टोटल सिलेक्ट किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज, ग्रैंड टोटल कहाँ पे चाहिए, कॉलम पे, तो क्लिक ऑन परसेंटेज कॉलम, परसेंटेज ऑफ कॉलम, प्रेस ओके. ये देखिए इसका मीनिंग क्या है, पूरा जो एफडी का बिजनेस है विच इज 100%, उसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन अशोक कुमार, राइट. ये देखिए यहाँ पे. ओ तो आईआरए के बिजनेस में थोड़ा उल्टा है. देखिए आईआरए का जो 100% बिजनेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वरुण कुमार. मतलब कल जाके वरुण कुमार ने छोड़ दिया तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से बिजनेस पे आएगा, आईआरए मतलब पीपीएफ वगैरह के बिजनेस पे आएगा, राइट. और कौन सा है, ओके मोस्टली अशोक कुमार इज द हाईएस्ट एंड देन चेंजेस हो रहे हैं बाद में. तो यू कैन डू इंडिविजुअल बिजनेस वाइज, मतलब एफडी का बिजनेस, करंट अकाउंट का बिजनेस, सेविंग का बिजनेस, इसके बेसिस पे भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डेटा, राइट. नाउ सपोज आई वांट कि अरुण कुमार का कौन से बिजनेस, जो भी मेरा ये अकाउंट टाइप है उस पे उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब अरुण कुमार 100% काम कर रहा है तो उसमें से सबसे ज्यादा काम कौन से बिजनेस के लिए कर रहा है, ये मुझे चाहिए था. इफ आई वांट टू डू दैट, व्हाट आई कैन डू, सेम ऑप्शन अगेन, go to count, value field setting, show value as, यहाँ पे कॉलम की जगह आई विल सिलेक्ट रो. ओके प्रेस ओके. ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अरुण कुमार 100% काम कर रहा है तो कौन से बिजनेस में उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, अरुण कुमार का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें, चेकिंग, मतलब करंट अकाउंट ये बहुत अच्छे तरीके से संभालता है, इसका कंट्रीब्यूशन वहां पे सबसे ज्यादा है, राइट. व्हाट अबाउट श्वेता's contribution, श्वेता इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू 2, चेकिंग एंड सेविंग, दो ही अकाउंट उसने कंट्रीब्यूशन किया है, राइट. आउट ऑफ हर 100%, मतलब उसने जितने भी दिन काम किया होगा उसमें उसने 50-50 यहाँ पे काम किया है, ऐसे, राइट. ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो. इसका थोड़ा और एडवांस वर्जन चाहिए तो हर ब्रांच के लिए किसने कितना काम किया है वो भी आप निकाल सकते हो. लेट मी शो यू. कॉलम में मैं डायरेक्टली ब्रांच देता हूँ, लेट मी रिमूव दिस, ये देखिए
मतलब अभिषेक कुमार 100% काम कर रहा है, तो कौन से ब्रांच में सबसे ज्यादा काम किया है उसने? सेंट्रल के लिए. लाइक दिस आई कैन एनालाइज. प्रमोद कुमार सेंट्रल के लिए, राइट? ऐसे हाईएस्ट, इनका हाईएस्ट कौन है? मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन सेंट्रल, राइट? सेंट्रल के लिए काम कर रहे हैं, और 28%, 30%, 22% इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हर एक ब्रांच में है. लाइक दिस यू कैन एनालाइज. क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड हाउ वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम? मतलब यहाँ पे मैंने सैम्पल क्वेश्चंस लिखे हैं, बट इस क्वेश्चन को एनालाइज करके आप इंसाइट्स एंड एक्शंस सजेस्ट कर सकते हो. क्लियर? क्लियर एवरीवन? सो होमवर्क आपको 2-3 क्वेश्चन है. आई विल अगेन विल स्टार्ट विद टुमारो विथ द सेम टॉपिक पिवट, और वहां पे और डिटेल में समझेंगे चार्ट्स क्या होता है, इफ आई वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ चार्ट, स्लाइसर्स, और 2-4 ऑप्शंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है. वी विल डू दैट, बट आई वांट यू टू एटलीस्ट सॉल्व दीज 4-5 क्वेश्चंस. जो भी आपको होमवर्क दिया है वो 4-5 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. कल जो हम थोड़े और 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे, वो आपको समझने में आसानी होगा. क्लियर एवरीवन हाउ वी आर हैंडलिंग, मतलब हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, एंड हाउ वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी स्टेप. ओके, अंडरस्टूड? गुड. होमवर्क क्लियर है सबको? ओके, गुड देन. So thank you then. I know it's already 2 minutes delay hai, but yeah, good then. So please do complete your homework. Pivot table important hai, and do complete your homework. Okay, so we will meet tomorrow in the office. Okay, so thank you. Thanks a lot everyone for your time. Thank you, sir. Thank you.